Hello friends, this is Somaranjan Nayak and I welcome you to my channel The Mango Researcher. Dear friends, this video is going to be a bit different because over here I am going to discuss in detail regarding what does it mean to be a student YouTuber. Now, if you are into YouTube and you are a student, then definitely you must have come across names like Etisha Garg, Narendra Raj, Devendra Solanki, Mahima Badan, Akansha Urde, Siddharth Shukla. They are students from premier technical institutes across the country who day in and day out make it sure that they give a glimpse of what life is all about, what placement is all about, how the food is, how the overall culture at premium institutes across the country is like for all of you, so that कि आप घर बैठे एक झलक देख सके कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें पढ़ने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तो उसमें जाके वहाँ जाके क्या मिलता है। कोई लाइफस्टाइल दिखाता रहता है, कोई प्लेसमेंट्स के बारे में बताता रहता है, कोई आपको खाने के बारे में बताएगा, कोई अपने रूम के बारे में बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज के दिन में ब्लॉगिंग कर रहे हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। So in that regard, I would like to also narrate that what brought me into YouTube and how has it changed my life, affected me. I'll be discussing with you in detail. So let's take a small break before we continue with my journey in YouTube. And let's take this opportunity to thank the sponsors of today, that is Unacademy, the largest online platform for learning. And they have come with a very beautiful program along with some experienced mind. And let's have a look at it. So the program is called Early Excel for Droppers for JEE Mains and Advanced 2022. Remember that the batch starts on 5th of May. Over there you have got experienced faculty, which includes Manoj Chauhan sir, you have Kailash Sharma sir from IIT Patna, you have Sharad Kothari sir with 18 years of experience, you have Piyush Maheshwari sir, he is the ex-HOD at Bansal classes, you have Brijesh Jindal sir who is from MNIT Jaipur. So you have a very experienced mind who are going to guide you. So Unacademy is going to provide you with a IIT JEE mega subscription offer for 2022 aspirants. If you buy a 1-year Unacademy subscription, you get an additional 3 months free. That's impressive. Then for the 2023 aspirants, if you buy a 2-year Unacademy subscription, you get an additional 4 months free. But remember that the last date for availing all these opportunities is 5th of May. So I hope that you all go in mass and then avail the beautiful programs that are provided by Unacademy on time. So with this, we end this ad session and let's go with my journey. So I started YouTube, if I'm not wrong, around a year and a half ago when I was sitting in my lab and मुझे लगा कि यार एक वीडियो रिकॉर्ड ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास कंटेंट तो तब इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपने पीएचडी का एक्सपीरियंस ही बता देता हूँ। ठीक है, तो तकरीबन 15 मिनट का मैंने रिकॉर्ड किया एंड उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, तब मैं नया था तो मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब के भी बहुत सारे अनरिटन रूल्स रहते हैं, जिससे कि आपको जो इम्पैक्ट होता है जब आप सोसाइटी को कुछ देते हैं, सोसाइटी भी आपको कुछ देती है। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट आप पे होता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाए बिकॉज यू हैव स्टार्टेड समथिंग, आप ये नहीं चाहते। तो मेरा भी यही मानना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। तो आफ्टर आई मेड अ वीडियो रिगार्डिंग पीएचडी एट आईआईटी बॉम्बे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैंने नरेट किया मेरा एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आईआईटी बॉम्बे में, कैसे एडमिशन होता है, कैसे पढ़ाई होती है, देन कैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, खाना पीना सब कुछ मैंने उसमें बता दिया। देन मैंने उसको हर जगह शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, उसको फेसबुक पे शेयर कर दिया, हर जगह शेयर कर दिया। मैंने वो हर चीज किया जो आज के दिन में मैं नहीं करता, वो है शेयरिंग एट ऑल द प्लेटफॉर्म्स। तो मुझे भली भांति याद है कि मेरा एक दोस्त है, बहुत क्लोज है एंड ही इज वेरी डियर टू मी। उसने क्या किया कि वो वीडियो उठा के हमारे एक पीएचडी ग्रुप है वहां पे डाल दिया एंड देन भांति भांति प्रकार के कमेंट्स आने लगे कि यार ये क्या है, अभी तुझे तो बोलना भी नहीं आता, तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो 50 टाइप का कमेंट आए, अच्छे कमेंट्स भी आए, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स भी आए, जिसमें लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है भाई, तूने पहली बार बनाया है, कुछ अच्छा बनाया है, तो अच्छा लगा। तो ये भी आए। तो आई फॉर मी बोथ ऑफ द कमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे नहीं बोलता कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो फिर वो गलत होता है।
बिकॉज दैट विल हेल्प मी ग्रो। पर एक चीज जो मुझे टच किया कि यार मैं भले ही उसमें बुरा हो सकता हूं, बट ये एक ऐसी चीज है जिससे रिएक्शन आ रहा है, तो कुछ तो इसमें बात है जो मुझे आगे लेके जा सकती है। उससे पहले मैंने एक्चुअली स्टूडेंट काउंसलिंग, लाइक स्टूडेंट को हेल्प करना जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो ठीक कोर्सेज में पहुंच सकें, या स्टूडेंट कम्युनिटी में एक डाउट रहता है क्योंकि ये जो आईआईटी है इसका जो बाउंड्री है उसके बाहर बहुत कम इन्फॉर्मेशन जा पाता है, तो ऑनलाइन उतनी इन्फॉर्मेशन मिलते नहीं है। तो फिर मैंने एक पेज शुरू किया था 2014 में, रिसर्च फॉर ऑल। आज भी वो पेज है, यू कैन गो एंड लुक इनटू इट। मैंने वो पेज छोड़ दिया बिकॉज 2018 एंड 19 में मैंने अपना फेसबुक डिलीट किया था, तो फिर मुझे वो पेज छोड़ना पड़ा। आज भी वो पेज है, उसमें पता नहीं लोग क्या क्या पोस्ट करते रहते हैं अभी, लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे मैंने कितना एफर्ट्स डाला था। और फिर इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं कॉल रिसीव करता था और मैं उनको समझाता था कि कैसे लाइक आईआईटी अगर पहुंचना है तो क्या करना है, क्या क्या डिफिकल्टीज रहती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो सारे मैं बताता था। तो मुझे इस बात, जब मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देखो, जब अगर कोई मुझे कॉल करता है और मैं उसे अपनी बात बता देता हूं, तो दैट कॉन्वर्सेशन इज डेड आफ्टर द कॉन्वर्सेशन। ठीक है, वो आइडियाज जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपने अगर आइडियाज रखूं तो साल दर साल, सालों साल लोग उससे बेनिफिट हो सकते हैं। तो यही मेरा प्राइमरी आइडिया था। तो जब मैंने बहुत वाइल्ड सा रिएक्शन देखा तो मुझे लगा कि यार मे बी मैं अगर इसमें थोड़ा बहुत सुधार करूं तो इसमें आगे बढ़ सकता हूं। पर ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बात नहीं है। तो वो एक पर्टिकुलर चीज थी जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं दूसरा वीडियो डालूं। पर अगेन जब मैं वीडियो डालने की सोचने लगा, देन तो मेजर कंस्ट्रेंट ये था कि मेरे पास आइडिया नहीं था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आज के दिन में मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। आप अगर बोलो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मैं यूज करता हूं टू मेक माई वीडियो। उतने अच्छे तो बनते नहीं है, लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बना लेता हूँ। बहुत हाई फाई इफेक्ट्स तो नहीं बना पाता, पर इन्फॉर्मेटिव बना लेता हूँ। तो मैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता हूँ, अगर आपको चाहिए देन कमेंट बिलो एंड मैं उसका एक वीडियो बना लूंगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या कौन कौन से गैजेट्स में यूज करता हूँ अपने वीडियो बनाने के लिए। तो द नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस वाज कि कैसे करूँ। लाइक द बिगेस्ट इशू वाज साउंड। अगर मैं कहीं पे बैठ के अपने, हाँ, तब मैंने एक आईपैड ले लिया था, आईपैड एयर 3 मैंने ले लिया था। तो फिर मैं उससे वीडियो बनाने लगा, पर देन मैंने देखा कि उसमें साउंड का मतलब जो बैकग्राउंड नॉइज है वो बहुत ज़्यादा था। तो बहुत परेशान हुआ। लेकिन हमेशा ये दिमाग में रहता था कि यार परेशानी तभी होती है ना जब आप किसी चीज़ में शिद्दत से लग जाते हो, क्योंकि बहुत सारे अड़चने आती हैं जिनको हटाने के लिए तुम्हें एफर्ट डालना पड़ता है। तो फिर मैं लगा नहीं यार करना है। तो धीरे धीरे मैंने बहुत सारे मैंने एक्चुअली, आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने ना नोट्स बनाए। एक पैडी गैलोवे करके एक पेज है, एक चैनल है, देयर दैट गाय एनालाइजेज ऑल द सक्सेसफुल यूट्यूबर्स। तो मैं वहां पर जाकर मैंने अपने नोट्स बनाए कि जैसे केजी नाइस्टैट हो गया या मिस्टर बीस्ट हो गया, तो ये सब लोग क्या करते हैं कि उनके पास लोग भागे चले जाते हैं और हमारे वीडियोस देखते नहीं। ठीक है, तो मैंने सारे नोट्स बनाए एंड देन कुछ गैजेट्स खरीदे एंड देन एडिटिंग सीखा। तो धीरे धीरे मेरे जो वीडियोस हैं वो थोड़े बहुत अच्छे बनने लग गए। अच्छे मीन्स मेरे हिसाब से, मेरे पास्ट के हिसाब से, जितने गंदे वीडियोस मैं बनाता था तो उसके कंपैरिजन में हर वीडियो के बाद एक इंप्रूवमेंट होने लगा। तो उसके बाद फिर मैं देखा कि नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत प्यार मिलने लगा, बहुत ज़्यादा प्यार। और लोग अपने क्वेरीज डालते थे। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया कि अपने एक ईमेल आईडी बनाया कि ठीक है, मैं एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाता हूँ और वो मैं सबको देता हूँ। स्टूडेंट आज के दिन में जब भी कुछ क्वेरी होता है मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट उसमें मेल कर देते हैं। अगर चीज़ें बहुत अर्जेंट मुझे लगी देन मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ उसमें। ठीक है, ताकि मुझे कॉल कर सके एंड बात कर सके। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत पॉजिटिव बनाया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ ढंग से चलती नहीं है, आपके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं होते आप। तो इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे कॉल करता है या मैसेज करता है टेलिंग देयर प्रॉब्लम्स, एंड देन मैं उनको कुछ बता के उनका जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, मैं उसको हटा पाता हूँ। तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कोई एक डाउट है, किसी के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बता दिया। ठीक है, तो बीइंग अ स्टूडेंट यूट्यूबर, इस बात का मुझे हमेशा खुशी रहता है कि लोग जो होते हैं जनरली बहुत जेन्युइनली, इनोसेंटली आते हैं और अपनी सारी बातें, मतलब इतने बड़े बड़े मेल, मैं साइज नहीं दिखा पा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े मेल लोग मुझे लिखते हैं। ठीक है,
और उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, इससे तो बात करनी चाहिए, क्योंकि यार प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत वेरिएड टाइप के प्रॉब्लम्स लोगों के पास होते हैं। किसी के पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है, किसी का एजुकेशनल जो मीडियम का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे इश्यूज है जो स्टूडेंट्स लेके आते हैं। तो मैं सबके हल तो नहीं ढूंढ पाता, लेकिन हमेशा से इस बात की खुशी होती है कि मैं कुछ ना कुछ तो बोल के भेजता हूँ उन्हें, ताकि उन्हें वो एक उन पे एक संतुष्टि होती है कि हाँ, आज हमने बात किया तो हमें अच्छा लगा। ठीक है, तो आज ही एक स्टूडेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट है, वो आया और मुझे बोला कि सर मैंने आपसे बात किया हुआ था। मुझे तो याद भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते रहते हैं, तो मुझे याद नहीं रहता जनरली। कुछ नाम हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत परसिस्टेंट हैं, वो अपनी हर चीज़ें मुझे इन्फॉर्म करते रहते हैं, लेकिन जनरली अगर एक दो कॉल हुआ तो फिर मुझे याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। तो उसने बोला कि सर मैंने आपसे बात किया हुआ था, एंड आपने मुझे बताया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, लाइक आई एम हैप्पी कि लाइक अगर मेरी कोई भी एक बात, यार मैं क्या ही हूँ, तो मेरी अगर एक बात किसी को हेल्प कर देती तो इस बात की बड़ी खुशी रहती है। तो बीइंग अ स्टूडेंट यूट्यूबर, वो जो एक रीच हमें मिलता है सो दैट हम स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं, उस बात का बहुत अच्छा लगता है। सो अब तक हमने ये डिस्कस किया कि जैसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने के लिए, देन बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक नया प्रॉब्लम सेट लेके आते हैं, बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा मेरी सिचुएशन में क्या करूं, और उस बारे में मुझे आइडिया नहीं रहता। तो मैं दूसरे यूट्यूबर्स हो गए, दूसरे एक्सपर्ट्स हो गए, मैं उनसे बात करता हूं, उनसे डिस्कस करता हूं, तो इस प्रोसेस में मेरा नॉलेज भी बढ़ता है। तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आया, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे मैं मेटलर्जी डिपार्टमेंट का, मुझे कोई फिजिक्स के बारे में पूछता है, कोई बायोमेडिकल के बारे में पूछता है, तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं रहता, तो फिर मुझे पढ़ने का एक मौका मिलता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट यूट्यूबर, एक तो रीच मिलता है, देन स्टूडेंट्स को हेल्प करने का एक मौका मिलता है, सेकेंडली बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शायद हम सीख ना पाए, बट बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट आते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं, एंड कॉन्टैक्ट बनता है, वो बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक देयर आर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस आईआईटीज, ऑलमोस्ट ऑल आईआईटीज, लिविंग अपार्ट द न्यू आईआईटीज, मैं कोई ना कोई किसी ना किसी को जानता हूं थ्रू यूट्यूब। ठीक है, तो एक रीच बनती है, एक अपना नॉलेज बेस बढ़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिसके बारे में आपको आइडिया कभी नहीं लगता अगर आप किसी दूसरे का प्रॉब्लम ना सुनो तो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कि बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आते हैं, मेरे पास हमेशा आंसर नहीं होता, पर इस प्रोसेस में मैं सीखता हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। देन द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूबर्स हैं जो आज के दिन में यूट्यूब को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है, उससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि उनके स्टूडेंट लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहता है। अभी तक तो मेरा मोनेटाइज हो गया है, लेकिन अब तक मुझे पैसा नहीं मिला है। लेकिन हाँ, अगर फाइनेंशियली किसी को थोड़ा बहुत इशू है एंड आपको लगता है कि आप कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, देन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरा जो फेवरेट यूट्यूबर है वो डस्टी बन है, देवेंद्र सोलंकी। आप उसका यूट्यूब जाके देखो, उसके पास बहुत मिनिमल रिसोर्सेस है। ठीक है, बट वो जो जेम प्रोड्यूस करता है ना, जो हीरे तराश के निकालता है अपने वीडियोस में, वो बहुत हार्ट टचिंग रहता है। उसके एफर्ट्स को मैं सलाम करता हूं, एंड बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जाकर, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जाकर उसके वीडियोस देखो। देन कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, जहां पर आई वुड से कि आप कैसे बन सकते हो एक यूट्यूबर। पहली चीज, उसके लिए आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा, डाल दो, कुछ भी बनाओ डाल दो, एंड देखो कि लोगों का रिएक्शन कैसे आ रहा है। अगर एडिटिंग वगैरह में थोड़ा बहुत हमेशा से इशू रहेगा, वो आप ओवर द टाइम सीख लोगे, लेकिन पहली बार जब आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो, देन आपके अंदर जो हिडन रेजिस्टेंस रहता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो जो इनर रेजिस्टेंस होता है वो हट जाएगा। एक बार वो हट गया, देन आपकी कमेंट सेक्शन से फिर स्टूडेंट जो आते हैं वो बताते रहते हैं कि सर ना आप ना इसमें बनाओ वीडियो, आप ना उसमें बनाओ वीडियो, सर ये टॉपिक अच्छा है, वो टॉपिक अच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सजेशंस आने लग जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि बस एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बनाओ, आपको अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है आप उसके बारे में बनाओ, आप अगर फैशन एंथुजियास्ट हो तो उसके बारे में बनाओ, आपको मोटो रेसिंग अच्छा लगता है तो उसके बारे में बनाओ, कार्स बाइक, आपको जो भी अच्छा लगता है उस टॉपिक पे आप बनाओ। सो हम थोड़ी बाहर की हवा खाने आ गए। मैं ये बोल रहा था कि आपको कोई भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो आप उस पर वीडियो बनाओ। ठीक है, मे बी ये हो सकता है कि आपको इनिशियली व्यूज़ ना मिले, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है देन आप रुकोगे नहीं। जैसे मेरा काउंसलिंग में, करियर काउंसलिंग में बहुत इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, हेल्पिंग स्टूडेंट आउट में हमेशा इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे कभी बोर नहीं लगता अगर मुझे मेरे व्यूज़ भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है देन आपको उस पर वीडियो बनानी चाहिए, अगर आप यूट्यूब को कुछ भी मानते हैं, ठीक है। ये आपको एक पैसिव सपोर्ट दे सकता है मॉनिटरली अगर आपका चैनल ग्रो करा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक रीच देता है, एक पहचान देती है, तो बहुत कुछ होता है। तो विद दिस आई विल कंप्लीट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग एज अ स्टूडेंट, हाउ यू वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, कौन कौन से गैजेट चाहिए, क्या चाहिए, कोई भी इश्यूज है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि उसका आंसर दूँ। विद दिस आई साइन ऑफ, टेक केयर एंड स्टे सेफ।